Hello students, from last few days we are just observing that is the chapter electrostatic, that is your 8th chapter. Okay, so just see how much topics we have completed. We have completed that is the application of Gauss law. Okay, next we have seen the 3 applications of the Gauss law. See, this is the spherical shell. Next we have seen that is the for the long straight conductor. We have completed this too also, and then we have completed, that means for a plane sheet. Okay, so we have completed the three derivations, that is applications, and then we have completed this topic, that is the electric potential and the potential energy. So we have completed all these all portions. Next we have completed the concept of, so it is quite difficult me to show you. So then the concept of the potential. Okay, and then we have seen the relation between the electric field and the electric potential, then zero potential. Then we have seen the electric potential due to the potential points. All these topics we have seen. We have seen this derivation, long big derivation, this also. Then we have seen the electrostatic potential due to the system of the charges, and next topic, that is the equipotential surface. I told you that this topic is not in your syllabus, so we will skip this topic. And then we have completed, that is the potential energy, electrical energy. We already started this, and we have, there is given the A, B, C, D, and last one, that is the E topic also. So last we have completed this topic, that is the torque topic, that is the couple acting on a dipole. Okay, so we have completed up till this. The next topic, it is given, that is the conductors and the insulator, free charges and the bond charges inside a conductor. Okay, so student, this topic, it is not in your syllabus again, so we skip this. But the next topic is given, that is the 8.8, dielectric and the electric polarization. Okay, so from this book only, it is quite easier to you understand. So I will just explain through this book only, just try to understand. Okay, so student, we will see 8.8, dielectric and the electric polarization. Okay, this is the next topic. So student, I will take this topic from your textbook only. It is quite easier to understand you from your textbook. Okay, so before to start our topic, I want to give some introduction. Now see what he says, that is the electric, what is electric dipole? The combination of the two equal and opposite charges. When we are considered two equal and opposite charges, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, दोनों कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस r. Okay, what it is called as the electric dipole, having the two poles. Okay, that means the product of the charge and the distance between them is called as the electric dipole moment. What is a next, the product of the charge, एक charge, and the distance between them is called as the electric dipole moment. So suppose we are consider this, you have the one charge, okay, and the distance between them, it is r. So we will say the electric dipole moment, it is equal to qr. Getting? So it is suppose introduction, we will say it is required for your dielectric and the electric polarization. Now see, dielectrics. Dielectrics are the insulates. That means it is a bad conductor of electricity, which can be used to store the electric energy. जो electric energy store करने के लिए use में होती है. This is because when such substance is, see what he says, that सबसे पहले उसने बोला है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक, it is a substance, and this substance, it is nothing but the
insulates, that means it is a bad conductor. Then he explained that is the polarization. What is polarization? When such substance, which type of substance? Dielectric substances are placed in an electric field. In the last video I told you, when we are taking that is the torque, at that time we are take that is टॉर्क में मैंने बताया कि दो डाइपोल्स है, कहाँ पे रखे हुए हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. ओके, सिमिलरली इन दिस ऑल्सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमारे पास में क्या है कि एक dielectric substance है. When it is placed in an external field, their positive and the negative charges get displaced in opposite direction and the molecules develop a net dipole moment. Now is called as the polarization. Now इसको explain करना है तो what we will say कि आपके पास में एक substance है. Okay, now this is your substance. Now this substance it is मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. कैसे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स से बना है. और एक मॉलिक्यूल्स में सपोज वी आर टेकिंग हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. तो जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं. तो एक मॉलिक्यूल में सपोज ये आर कंसिडर नेगेटिव एंड दिस इज़ द पॉजिटिव, सेपरेट हो गए. वैसे ही दूसरे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो रहे. ओके, तो हर एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होते जा रहे हैं. और सबको हम लोग काउंट करते हैं तो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में हम लोग जब काउंट कर रहे हैं तो क्या हो जाता है कि सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव दोनों सेपरेट हो जाते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस, ऑल द नेगेटिव charges and all the positive charges are separated, and that's why we are saying that the all that is the net dipole moment. मतलब net मतलब क्या होता है? इन सब का मिला के, इसका सबका मिला के एक जो नेट टोटल डेवलप हो जाएगा. तो ये सारे टोटल में क्या हो जाएंगे? सारे पॉजिटिव और सारे निगेटिव सेपरेट हो गए हैं. एंड दैट्स वाई ही इज टेकिंग दैट सच अ सेपरेशन इज कॉल्ड एज द नेट डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे भी दो डाइपोल क्रिएट हो रहे. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल, एंड सच मटेरियल आर कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो आई होप दैट कि यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. पहले इसमें बताया कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक. तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इट इज़ अ insulator, that means no, it is a bad conductor, no electric passes through it. Next he explained what is polarization. तो polarization मतलब ऐसा substance है इनमें क्या होता है कि सारे negative charges और सारे पॉजिटिव चार्जेस दोनों सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेट हो जाने की वजह से बिकॉज ऑफ दैट क्या क्लियर हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है? देर इज़ द टू पोल्स आर क्रिएटेड. ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द दैट इज़ द नेट. पूरे सबके डेवलप हो गए हैं तो नेट डाइपोल मूवमेंट, एंड दैट इट इज़ कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल. गेटिंग, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रिंगा. नेक्स्ट ये पैराग्राफ होने के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेज दैट इन एवरी एटम. अब हमको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर में एटम्स होते हैं, एंड व्हाट ही एक्सप्लेन इन दैट कि देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस. जो हम लोग एक एटम कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होता है? देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस. जो सेंटर है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और सराउंडिंग में क्या होता है? तुम्हारे सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Okay, so what he says that in every atom there is a positive charge nucleus and there is a negatively charged electron surrounding it. उसके सराउंडिंग में सारे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, and the negative charges from क्या फॉर्म कर रहा है वो? दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो ये जो प्रोसेस दिखा रहा है उसको बोल रहा है कि ये क्लाउड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये सारे क्या है तुम्हारे? दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स, और किसके सराउंड में है? पॉजिटिव न्यूक्लियस के. ओके, ये हो गया. नाउ सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस टू ऑपोजिटली
charge region. Okay, now in this what he says that कि आपके पास में पॉजिटिव है, आपके पास में निगेटिव है. अब सपोज वी आर टेकिंग दैट दिस इज़ द पॉजिटिव और दिस इज़ द निगेटिव, उन दोनों को उसने एक अलग रीजन बताया हुआ है. ओके, नाउ ही सेज दैट कि दीज टू अपोजिटली चार्ज रीजन, ये पूरे अलग अलग दो रीजन हैं एंड हैव देयर ओन सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, उनके अपने एक सेंटर्स होते हैं. ओके, नाउ सी दैट द सेंटर ऑफ द व्हाट ही एक्सप्लेन दैट द सेंटर, ये हमारे दो है. नाउ सपोज वी आर concerning that this is your positive region, this is your negative region. Now in this case what he says that suppose if you are consider that is the negative region. Okay, negative region में क्या बोल रहा है, the center of the negative charge, negative charge का जो center है is the center of the mass of the negatively charged electron, वो पूरा mass है. ओके, दैट इज़ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका वो बता रहा है, इंडिकेट्स दैट कि इसका जो सेंटर है वो ही सेंटर, किसका सेंटर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द चार्ज इज़ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. ओके, वैसा ही वो बता रहा कि दूसरा जो हमारे पास में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में भी वही बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज, ओके, वी हैव द पॉजिटिव रीजन, पूरा पॉजिटिव है, उसमें का भी जो सेंटर है वो सेंटर इज़ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन. गेटिंग, मतलब उस चार्ज का जो पॉजिटिव है वो तो सेंटर है ही, एट द सेम वही क्या है, तुम्हारा पूरा होल उसका मास का भी सेंटर है. गेटिंग, तो आई होप दैट दिस 2 पॉइंट यू अंडरस्टैंड कि दो रीज़न है, दो रीज़न में उसने बताया कि है कि इसका जो सेंटर है किसका, निगेटिव चार्ज का, वही तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द निगेटिव चार्ज. वैसे ही उसने पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव का जो सेंटर है इज़ द मास ऑफ द पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. ओके, सो पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सेकेंड इसमें एक एटम को उसने कंसीडर किया है एंड ही एक्सप्लेन दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड द निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और जो निगेटिव क्या होता है, क्लाउड तैयार कर रहा है. नाउ ही एक्सप्लेन द 2 रीजन्स, 2 रीजन उसने एज्यूम किया है. मैंने एग्जाम्पल लेके अपने पाम को ही एग्जाम्पल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि वन इज़ अ पॉजिटिव रीजन, अनदर वन इज़ द नेगेटिव रीजन, और उसमें भी उसको सेंटर एज्यूम किया है. गेटिंग, दोनों के सेंटर इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस. गेटिंग, ये हो गया तुम्हारा. नेक्स्ट, दस द डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, दैट मीन्स दस द डाइलेक्ट्रिक्स आर द, क्या है तुम्हारे, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स, दैट मीन्स इट इज नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. Insulating materials, that means it is a bad conductor which can be polarized, जो हम लोग उसको पोलराइज्ड कर सकते हैं. पोलराइज्ड करना मतलब क्या होता है, दैट इज़ द स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस. पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज दिस. 10 करके उसने एक्सप्लेन किया है. व्हाट आर द एग्जांपल्स ही गिवन, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस. ओके, नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक कैन बी क्लासिफाइड एज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक उसने 2 इसमें क्लासीफाई किया है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है.